پاک، یہ جو حدیث پاک تھی، قرآن پاک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک سے کوئی ایسی آیت سناؤ کہ اس میں ولیوں کی شان بیان ہو جائے، ولیوں کی شان بیان ہو جائے، تاکہ لوگ گوھر کا نہ رہے کہ قرآن میں بھی ولیوں کی شان بیان ہو اور حدیث میں بھی ولیوں کی شان بیان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جب بھی یہاں بات کرتا ہوں یا قرآن کی بات کرتا ہوں یا حدیث کی بات کرتا ہوں، ہم نے قرآن حدیث سے بات کرنی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انما ولیکم اللہ، قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ ہمارا، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ تین قسموں کے ولی ہیں، کتنے؟ تین قسموں کے، جو قرآن میں آ رہا ہے تین قسموں کے ولی ہیں۔ پہلا ولی انما ولیکم اللہ، پہلا ولی تمہارا اللہ ہے، تمہارا اللہ ہے۔ اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا بھی ولی ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا بھی ولی ہے، بار بار فرما رہا۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ اور اسی آیت کے آگے جو لفظ فرمایا ورسولہ، اور تمہارا ولی رسول ہے۔ کوئی شرک ہوا؟ ایک ہی آیت میں جہاں اللہ پاک نے اپنے آپ کو ولی فرمایا کہ میں تمہارا ولی ہوں، اس کی آیت کے اندر الفاظ ہے ورسولہ، اور میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے، میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ اور آگے پھر اسی آیت میں فرمایا والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے جو اللہ کی محبت کا سودا کر لیں، جو اللہ کی محبت کا سودا کر لیں، جو اللہ کی بندگی میں فنا ہو جائے، جو اللہ کی اطاعت میں فنا ہو جائے، جو اپنا تعلق اس دنیا سے چھوڑ کر مولا کی طرف کر لے، جو بندہ اپنا رخ مولا کی طرف موڑ لیتا ہے، خدا کی عزت کی قسم خدا اپنا رخ اس بندے کی طرف کر لیتا ہے، جو متقی ہو جاتا ہے، جو پرہیزگار ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بھی مومنوں کا ولی ہے، وہ بھی مومنوں کا ولی ہے۔ والذین آمنوا، وہ ایمان والے جو اللہ کی محبت کا سودا کر چکے ہیں، اللہ کی محبت کا سودا کر چکے ہیں۔ اور حاضرین محترم بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے معروف ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس ہے، میرے آقا فرمایا ہے کہ اے میرے صحابہ تمہیں ایک بات بتاؤں، صحابہ کرام کی مجلس میں آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن جب تم جاؤ گے میری امت گناہ گار جائے گی تو کوئی اپنے اعمال کی طرف وجہ سے پریشان ہوگی، کچھ سورج کی تپس کی وجہ سے پریشان ہوگی، کچھ انسان کے اعمال تلے جا رہے ہوں گے اس کی وجہ سے پریشان ہوگی، کوئی بڑی زبان سے گزرنا ہوگا اس وجہ سے پریشان ہوگا، مگر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا کچھ میری امت کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور ایک بار وہ کون لوگ ہوں گے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اللہ کے ولی ہوں گے، وہ اولیاء کرام ہوں گے، وہ اللہ کے دوست ہوں گے، وہ اللہ کے دوست ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی غمزدہ ہوگا، ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، مگر ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، ان کو کوئی غم نہ ہوگا، یہ غمزدہ نہ ہوں گے، یہ غمگین نہ ہوں گے، یہ پریشان نہ ہوں گے، یہ اپنے مولا کا رخ دیکھنے کے لیے، اپنے مولا کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اپنے مولا کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کچھ اولیاء کرام اللہ کے ولی کوئی دوست ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 70 ہزار مرید محبت کرنے والے ان کے ساتھ جائیں گے اور بغیر حساب و کتاب بخشے جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا ان کو کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اور وہ جھگڑا کریں گے، وہ کہیں گے مالک تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جاتے، ہم جنت میں نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ فرشتوں ایک سے پوچھو کہ ہر کوئی جنت کا شکیل ہے، ہر کوئی جنت میں جا رہا ہے، ہر کوئی جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جاتے، ہم جنت میں نہیں جاتے۔ ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ جنت میں کیوں نہیں جاتے، جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہیں گے ہائے ہائے، وہ کہیں
पहचानते हो। वो कहेंगे तुम्हारी ताला हम पहचानते हैं, हम पहचानते हैं। और उधर अल्लाह पाक दोज़ख को हुक्म देगा कि ये क्योंकि खुद जानता भी तो है ना, खुद जानता भी तो है ना। दोज़ख को हुक्म होगा कि ऐ दोज़ख, ऐ जहन्नम की आग, इनके चेहरों को न जलाना, इनके चेहरों को न जलाना। मेरे वली इनको निकालने के लिए आ रहे हैं, निकालने के लिए आ रहे हैं, इनके चेहरों को न जलाना। तो अल्लाह पाक फरमाएगा क्या मेरे वलियों तुम उनको पहचानते हो, उनको जानते हो, पहचान लोगे? वो कहेंगे माशाअल्लाह पहचानते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, हदीस के अल्फाज है, अल्लाह पाक फरिश्तों को नहीं भेजेगा, अल्लाह पाक फरमाएगा क्या मेरे वलियों तुम खुद चले जाओ और अपने हाथों से दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले जाओ, अपने हाथों से दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले जाओ। ये क्यों फरमाया? ये इसलिए फरमाया फरिश्तों को भी हुक्म हो सकता था कि फरिश्तों उनको दोज़ख से निकाल के जन्नत में ले जाओ। अरे वलियों को क्यों फरमाया कि तुम खुद चले जाओ और अपने हाथों से निकाल कर जन्नत में ले जाओ? इसलिए कि दुनिया वालों को दिखाना चाहेगा रब कि कोई सबब बोलेगा, कोई सबब बोलेगा, कोई कहेगा कि जहन्नम की मुद्दत पूरी हो गई लिहाजा इसलिए जन्नत में चले गए, कोई कहेगा कि रब राजी हो गया इसलिए जन्नत में चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, रब ने फरमाया कि ऐ मेरे वलियों तुम खुद जाओ और अपने हाथों से निकाल कर जन्नत में ले जाओ, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि खुद वली निकाल के लेके जा रहे हैं, खुद वली लेके जा रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, इन्नमा वलियुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, इसमें तीन लोगों का जिक्र है कि तीन वली हैं। सबसे पहले अल्लाह वली है, फिर उसका रसूल वली है, फिर वो ईमान वाले जिनको औलियाए अल्लाह कहते हैं, वो भी तुम्हारे वली हैं, वो भी तुम्हारे वली। हदीस पाक में आता है। अब अगली बात ये भी बात साबित हो गई कि वली जो है वो बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे। जिनसे मोहब्बत है, वलियों से मोहब्बत है, तो अगर मोहब्बत होगी तो मैंने हदीस पाक सुना दी कि जो संगत वाले हैं, जो वलियों के पास जाते आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, जिनको मोहब्बत है, जो संगत वाले हैं, तो वली जो है उनको बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे। अब बात ये है कि ये जो वलियों से मोहब्बत करते हैं, ये जो वलियों के साथ मोहब्बत करते हैं, ये वलियों के साथ क्यों मोहब्बत करते हैं? अब ये सवाल, वलियों के साथ मोहब्बत क्यों करते हैं? क्यों? इसलिए वलियों के साथ मोहब्बत की जाती है कि वलियों का जिक्र इसलिए किया जाता है कि जब वली जिक्र करता है तो रब भी उस वली का जिक्र करता है, रब भी उस वली का जिक्र करता है। वो वली इस दुनिया में जिक्र कर करके चला जाता है और रब जो है वो फरमाता है कि तूने ऐ बंदे तूने मेरा जिक्र किया है दुनिया में रहकर, जमीन पर मेरा जिक्र किया है, अब मैं तेरा जिक्र अर्श पर करूंगा। अब जमीन पर भी तेरा जिक्र होगा और अर्श पर भी तेरा जिक्र होगा, फर्श पर भी तेरा जिक्र होगा और अर्श पर भी तेरा जिक्र होगा। वो कैसे? अल्लाह पाक हदीस पाक में आता है, सही बुखारी शरीफ में, ये जितनी भी मैंने हदीसें कोट की हैं बुखारी और मुस्लिम की, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें अल्लाह पाक फरमाता है कि जिब्राईल, जिब्राईल को बुलाया जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है जिब्राईल जरा आ जा। जिब्राईल आते हैं और अर्ज करते हैं तुम्हारी क्या ताला क्या हुक्म है? तो अल्लाह पाक फरमाता है जिब्राईल तुम्हें खबर है कि मुझे फला आदमी से मोहब्बत हो गई, मुझे दाता गाय बख्श से मोहब्बत हो गई है, मुझे कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी से मोहब्बत हो गई है, मुझे कमरुद्दीन सियालवी से मोहब्बत हो गई है, मुझे फला आदमी से मोहब्बत हो गई है। अब ये किसकी सुन्नत हुई? वलियों से मोहब्बत करना किसकी सुन्नत हुई? रब की सुन्नत हुई। अल्लाह फरमा रहा है, जिब्राईल को बुलाया जा रहा है और जिब्राईल को बुलाकर फरमा रहा है कि ऐ जिब्राईल मुझे फला आदमी से मोहब्बत हो गई है, यानी मुझे अपने वली से मोहब्बत हो गई है, मुझे अपने दोस्त से मोहब्बत हो गई है। तो जिब्राईल अर्ज करते हैं कि बारी ताला तुझे मोहब्बत हो गई है तो मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह पाक फरमाता है जिब्राईल अगर मुझे मोहब्बत हो गई है तो सो तू भी मोहब्बत कर, मुझे मोहब्बत हो गई है तो फिर तू भी मोहब्बत कर। जिब्राईल मोहब्बत करने लग जाता है, फिर अर्ज करता है कि जिब्राईल अर्ज करता है मारी ताला अब क्या हुक्म है? फरमाया कि अब तू भी मोहब्बत कर और सारे फरिश्तों के अंदर
क्यों? रब की जो सुन्नत हुई, रब ने जो ऐलान कर दिया, क्या फरिश्तों मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है, मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है। अगर मुझे मोहब्बत हो गई है तो तुम सारे उससे मोहब्बत करो। अब अगर वलियों से मोहब्बत करोगे तो फरिश्ते रहोगे, और अगर वलियों से मोहब्बत नहीं करोगे तो शैतान बन जाओगे। तो फरिश्ता है भी वो, फरिश्ता है भी वो जो वलियों से मोहब्बत करता है, जो वलियों से मोहब्बत करता है। रब फरमा रहा है कि मुझे मोहब्बत हो गई है सो तुम भी मोहब्बत करो। तो जिब्राइल अर्ज़ करते हैं कि मालिक ताला सारे फरिश्तों में तो ऐलान हो गया, सारे फरिश्ते मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, सारे फरिश्ते मोहब्बत कर रहे हैं, सारे फरिश्ते उसका जिक्र करना शुरू कर देते हैं। फर्श पर जिक्र शुरू हो जाता है उस वली का जो जमीन पर रब का जिक्र करता रहा, जो जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता रहा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ बंदे अब तेरा जिक्र, तूने मेरा जिक्र किया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तूने मेरा जिक्र किया है अब मैं तेरा जिक्र करता हूँ। और रब कैसे जिक्र कर रहा है? रब अर्श पर जिक्र कर रहा है, और जब रब ने जिक्र किया तो सात फरिश्तों ने भी जिक्र शुरू कर दिया। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। अब रब जिक्र कर रहा है। अब क्या हुआ? अब जिब्राइल को फिर बुलाया, ऐ जिब्राइल आ। जिब्राइल आया, अर्ज करने लगा बारी ताला अब क्या हुक्म है? रब ने फरमाया कि अर्श पर मेरे बंदे का जिक्र हो रहा है, मगर अब जा जहां मेरा वली रहता है, क्योंकि जमीन पर फर्श पर वो मेरा जिक्र करता रहा। मैं चाहता हूं कि उस बंदे का अर्श पर भी जिक्र हो, फर्श पर भी जिक्र हो, फर्श पर भी जिक्र हो। तुम्हारी ताला अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया है जिब्राइल अब जमीन पर जा और बंदों के दिलों में मेरे उस वली की मोहब्बत को डाल दे। लोगों के दिलों में मेरे उस वली की मोहब्बत डाल दे, ताकि वो भी जिक्र शुरू कर दे, वो भी जिक्र करता। तो इस जमीन पर जिब्राइल आते हैं और देखते हैं कि किस किस का दिल जो है वो साफ है, जिस किस का दिल साफ होता है, अरे हिब्बत से पाक होता है, हसद से पाक होता है, दुख से पाक होता है, अदावत से पाक होता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिस किस का दिल साफ है उसी दिल में मेरे वली की मोहब्बत डालो। अब आम मोहब्बत नहीं होती, हर इंसान को मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ उसको मोहब्बत होती है वलियों के साथ जिसका सीना रोशन हो जाता है, जिसका सीना रोशन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि ये वली जो है ये खुद नूर अला नूर है, खुद नूर अला नूर है। हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह के वली अल्लाह के जाने बैठे होंगे तो उनके चेहरे नूर अला नूर होंगे, उनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा, नूर की शुआएं निकल रही होंगी। सहाबा किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? मेरे आका ने फरमाया कि वो अल्लाह के वली होंगे और नबी भी उन पर रश्क करेंगे और शहीद भी उन पर रश्क करेंगे। नबी कहेंगे कि बारी ताला हम तो नबी थे इसलिए हमारे चेहरे को नूर अला नूर कर दिए। शहीद कहेंगे बारी ताला हम तेरी राह में शहीद हुए इसलिए हमारे चेहरे नूर अला नूर हो गए। ये कौन लोग हैं? ये तो न नबी हैं न शहीद हैं, ये कौन लोग हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, ये नबी और शहीद नहीं मगर अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली